અખિલ ભારતીય આદિવાસી કશ્યપ કહાર નિષાદ ભોઈનો 14મો અધિવેશનનો રાષ્ટ્રીય અધિવેશન મુંબઈ આરોલી સ્પોર્ટ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે યોજાયો હતો। આ કાર્યક્રમમાં જેમાં ભારતભરમાંથી 27 રાજ્યોમાંથી યુવા મોરચા, મહિલા મોરચાના પદાધિકારીઓ, વિવિધ પક્ષના ધારાસભ્યો, લોકસભા સભ્ય, સામાજિક આર્થિક શૈક્ષણિક નાયબ અને આધ્યાત્મિક જગતના જાણકાર અને વિશેષજ્ઞો માટે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। કાર્યક્રમના ઉદ્ઘાટન સત્રમાં જીતેન્દ્ર પ્રસાદ નિષાદ, રાજ્યસભા સાંસદ, ભારત સરકાર, અખિલ ભારતીય કોળી સમાજના અધ્યક્ષ અને એરોલીના ધારાસભ્ય શ્રી રમેશ દાદા પાટીલ, જમ્મુ કાશ્મીર રાજ્યના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શ્રી કવિન્દર ગુપ્તા, ઉત્તર પ્રદેશ સરકારના રાજ્યમંત્રી રામકેશ નિષાદ, રાજ્યમંત્રી સીતારામ કશ્યપ, રાજ્યમંત્રી ગોપાલ કશ્યપ, ધારાસભ્ય અજય નિષાદ, એરોલીના ધારાસભ્ય ગણેશ નાયક, આયુર્વેદાચાર્ય સ્વામી ગોરખનાથ, કથાવાચક પરમ પૂજ્ય ગોપાલદાસ શાસ્ત્રી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। સમન્વય સમિતિના રાષ્ટ્રીય પદાધિકારીઓ દ્વારા મુખ્ય 4 ઠરાવ પસાર કરવામાં આવ્યા હતા। નંબર 1 જાતિ આધારિત જનગણના, નંબર 2 સમાજ વિવિધ વર્ગો અને રાજનૈતિક ભાગીદારી તથા આગામી ઇલેક્શનમાં રાજ્યસભા વિધાનસભા ટિકિટ મેળવવા, નંબર 3 સમાજની વિવિધ ઉપજાતિઓનો અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિમાં સામેલ કરવા, નંબર 4 વિવિધ રાજ્યોની સરકાર દ્વારા કશ્યપ કહાર બોર્ડની રચના કરવી। કાર્યક્રમના ઉદ્ઘાટન સત્રમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે સાધ્વી નિરંજન જ્યોતિ, કેન્દ્રીય મંત્રી, ભારત સરકાર દ્વારા સમાજને એક સૂત્રમાં બાંધવા માટે સમન્વય સમિતિમાં જોડાવા તથા સમાજની ભારતભરમાં 22% વસ્તી હોવા છતાં સમાજની વિવિધ રાજકીય ક્ષેત્રમાં ભાગીદારી ઓછી છે। સમાજના પુનઃસ્થાપન માટે બધાએ એક થઈ વિવિધ રાજ્યમાં લોકોને સંગઠિત કરવા અવિરત પ્રયાસો કરવા પડશે। સમન્વય સમિતિના રાષ્ટ્રીય સંયોજક શ્રી રાજારામ કશ્યપ દ્વારા ભારતભરમાં થતી સમન્વય સમિતિના ગતિવિધિની માહિતી તથા વિવિધ રાષ્ટ્રીય અધિવેશનનું જાણકારી આપવામાં આવશે। સમન્વય સમિતિ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી બાબા માર્તંડ દ્વારા વિવિધ સમિતિ આવનારા સમયમાં વિવિધ કાર્યક્રમો માટે સંઘર્ષ સમિતિ અને વિવિધ પ્રદેશોની સમિતિ રચના અંગે માહિતી આપવામાં આવી હતી। સમન્વય સમિતિના રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી ડોક્ટર સુનિલ કહાર દ્વારા સમાજના યુવા વર્ગને કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા સંચાલિત વિવિધ યોજનાઓ જેમ કે સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા, સ્કિલ ઇન્ડિયા અંગેની જાણકારી આપવામાં આવી હતી। માછીમાર વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા સમાજના લોકો માટે ભારત સરકારની મત્સ્ય સંપદા યોજનાની જાણકારી આપવામાં આવી હતી। આ કાર્યક્રમમાં ગુજરાત રાજ્ય તરફથી સમિતિના રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી ડોક્ટર સુનિલ કહાર, સમન્વય સમિતિના પ્રદેશ અધ્યક્ષ યુવા મોરચા શ્યામભાઈ કહાર, શ્રી નવીનભાઈ બોરસિલ્લાવાલા, શ્રી પ્રેમભાઈ કહાર સહિત કુલ 9 લોકો પ્રતિનિધિત્વ ધર્યું હતું। मंचस्थ महानुभाव और हमारे समाज के अलग अलग प्रदेश में से उपस्थित माताएं, बहनें, भाई बंधु, दो 2010 में जब पहला हमारे अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहार निषाद भोई समन्वय समिति डोगरा धर्मशाला में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मुझे पता है 2011 में बड़ौदा में इस प्रकार का एक आयोजन हुआ था, तभी उस कार्यक्रम में मेरा मिलना हुआ और आज इतने बड़े स्वरूप में मुझे लगता है करीबन ये 14वां अधिवेशन है। पूरे भारत में अलग अलग स्थान पे करते करते आज हम मुंबई में महाराष्ट्र में अधिवेशन का आज दूसरे दिन चरण में हम पहुंचे हैं। सबसे पहले इस जो भगीरथ कार्य है, आज हम देखते हैं जो भी हमारे समाज के प्रतिनिधित्व कल से आज तक जो भी अलग अलग स्टेट में से उन्होंने बताया है, मंत्रीगण भी आए हैं, ये सब एक मोती समान है। लेकिन जब तक वो मोती को हम माला स्वरूप में अगर इकट्ठा नहीं करते हैं तो उसका वैल्यूज नहीं होती है। तो इस माला में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थ्रेड डोरे का होता है, ठीक है। तो ये भगीरथ कार्य हमारे सबके आदरणीय और हमारे समाज के भीष्म पिता ऐसे आदरणीय श्री राजाराम जी कश्यप और दिलीप कश्यप जी जो यहाँ पे उपस्थित है, शुरुआत से ये संकल्प लेके उन्होंने चले और आज इतने बड़े स्वरूप में हम सब इकट्ठा हो रहे हैं।
तो पहले हम सभी को उनका धन्यवाद मानना है और मैं तहे दिल से पूरे गुजरात की तरफ से उनका धन्यवाद मानता हूँ कि 2011 में जब बड़ौदा में अधिवेशन हुआ तो पूरे गुजरात के हमारे कहार, कश्यप, निषाद, भोई, परदेसी, केवड़, धीवर, दिवर, बाथम, सोहरा, मंडला सभी समाज वाले जुड़ चुके। कल से लेके आज तक अलग अलग विषय पे अलग अलग वक्ताओं ने अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया, जिसमें अलग अलग विषय में जैसे कि राजनीति, भागीदारी, जनजाति आधारित हमारी जनगणना, समाज को आरक्षण और कश्यप बोर्ड की स्थापना, ऐसे विभिन्न विषय अलग अलग वक्ताओं द्वारा रखे गए। मेरा जो दायित्व है अखिल भारतीय समन्वय समिति में राष्ट्रीय महासचिव हूँ यूथ विंग में, और हमारे यूथ विंग के अध्यक्ष नीरज जी भी हमारे साथ है। मुख्य है ये जो कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक युवा इस कार्य में जुड़ेगा नहीं तब तक इस कार्य को हम गति से आगे नहीं बढ़ा सकते। और जैसे हमारा देश में 65% से ज्यादा युवा है और आज के समय में हम सौभाग्य की बात कह सकते हैं, जो अलग अलग केंद्र सरकार और राज्य सरकार की काफी योजनाएं हैं। मेरा प्रोफेशन ऐसे मैं प्रोफेसर हूं यूनिवर्सिटी में, और युवा और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की काफी योजना से मेरा ताल्लुक है। तो आज सभा के माध्यम से जो भी युवा जुड़े हैं और बाकी के हमारे भाई बंधु हैं, आपके द्वारा मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि जो केंद्र सरकार की योजना है स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, उसमें हम युवाओं को बढ़ चढ़ के भागीदारी लेना चाहिए। स्किल इंडिया जैसे विषय है उसमें हमको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज का जमाना टेक्नोलॉजी का है। कुछ समय जैसे कि कल ही हमारे समाज की वेबसाइट का लॉन्च हुआ, उसमें सभी डिटेल्स हम उसमें रखने वाले हैं। उसके ध्यान में रखते हुए गुजरात में हमने गतिविधि शुरू की, और गुजरात में गतिविधि शुरू करते हमने सभी युवाओं के साथ बैठक लेना शुरू किया, और हर जगह पे ग्रुप में छोटे छोटे ग्रुप में हमने बैठक लिया और समन्वय समिति का जो विषय है युवाओं तक पहुंचाने का प्रयत्न किया। एक ऑब्जर्वेशन है कि आज का युवा उनका एम्बिशियस होता है कि पॉलिटिकली आगे बढ़े, लेकिन समाज को बाजू में रख के अगर वो आगे बढ़ते हैं तो एक समय के बाद उनका लिमिट खत्म हो जाती है, वापस बैक टू पैवेलियन। इसीलिए मैं सभी युवाओं को आज के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आप युवा समाज के लिए जो भगवान राम जी नल और नील नाम के दो इंजीनियर को ये काम सौंपा गया और बहुत ही अच्छी तरह पुल बनाया गया, लेकिन उस कार्य में एक गिलहरी कुछ छोटे छोटे कंकर इकट्ठा करके जहां पे सेतु निर्माण हो रहा था वहां पे कार्य कर रही थी। तो राम जी ने जब गिलहरी को पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने गिलहरी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा भी एक उल्लेख उसमें होगा, क्योंकि जो बड़े बड़े पत्थर है उसके बीच में जो गैप वॉइड्स होती है उसको भरने का काम कर रहे हो। तो इस प्रकार इतना अविरत कार्य हो रहा है, लेकिन हम सभी अगर छोटे छोटे छेद है जहां जहां लगती है कि यहाँ जहां हमारी जरूरत है वो स्वरूप में हमको जुड़ना चाहिए। समाज में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, जिस प्रकार की व्यवस्था जिस प्रकार का कार्य आपको सौंपा जाए उसके अनुरूप आपको जुड़ना चाहिए, तभी एक सशक्त पुल का निर्माण हो सकता है, एक सेतु का निर्माण हो सकता है। ये उदाहरण हमको देखने में आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इतने सारे महापुरुषों के डिटेल्स हमने यहाँ पे देखे, उसमें से आप एक देखते हैं केवड़ जी ऐसा कहते हैं कि पूरे विश्व की नाव
भगवान राम जी ने पार कराई, लेकिन वनवास समय भगवान राम जी की नैया हमारे केवट जी ने पार कराई। तो ये हमारा गौरवशाली इतिहास है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हम जाते हैं, बात करते हैं, लेकिन ये हमारा गौरवशाली इतिहास है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए।